किसी भी उद्यम को शुरू करने के लिए apart from the other things, money is the most important, and these resources at times as entrepreneurs we find very challenging. So to help us in this series, we have our banker, Mr. Kailash Narayan Khatik. He is the Assistant General Manager for SBI. Mr. Khatik, I invite you, please. Good afternoon. I will tell about Stand Up India scheme. So, the scheme Stand Up India scheme was launched by Prime Minister in 2016. The scheme endeavored to create an ecosystem for SC, ST, and women entrepreneurs, which facilitates and continue to provide a support environment for doing business. The facility sanctioned by the bank under this scheme is between about 10 lakhs and up to 1 crore. In this scheme, to at least one scheduled caste or ST borrower or at least one woman borrower per bank per branch. For setting up a greenfield enterprise, which may be in manufacturing, service, or trading sector. In case of non-individual enterprise, at least 50% of the shareholding and controlling stake should be held by either SC, ST, or entrepreneur. The scheme cover all branches of commercial bank can be assessed in three potential way: directly by the branch, through SIDBI, as mentioned earlier. Interactive portal has three important features: handholding support, loan from bank, guarantee support for collateral free loans. Scheme guidelines: target group SC/ST and women entrepreneurs. Purpose: to meet all kind of credit requirement for setting up greenfield project under manufacturing, service, and trading sector. Type of facility: both working capital, term loan, or both. Quantum finance: more than 10 lakhs, maximum 1 crore, margin 10%. Or RuPay card to be issued by the cash credit component. Rate of interest 9.65%. Pre-penalty: no pre-penalty. Processing fees 0.20% of the loan amount plus service tax. Security: high protection of stock, machinery, movable, purchase out by the bank finance, or collateral security cover under SUI scheme, Government of India SUI scheme. Thanks. सर खटीक सर, मेरा एक आपसे सवाल है कि आपने स्कीम के बारे में अभी बताया, अब आप हमें ये बता सकते हैं क्या कि जब आपके पास कोई लोन एप्लीकेशन आती है, हमारे पास ये सवाल बहुत आते हैं कि लोन हमें चाहिए और बैंक और गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं बहुत सारी, पर जब हम लोन लेने चाहते हैं तो हमको लोन मिलता नहीं है। तो आपके एक्सपीरियंस से आप ये बता सकते हैं क्या कि क्या ऐसी चीज होती है जो बहुत रिक्विजिट होती है, जिसको अगर ध्यान में हम रखें तो हमारे लिए लोन अवेल करना इजी हो जाता है? मैडम, जो जब लोन में क्या है कि जो एप्लीकेशन और उसके साथ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, वो उसमें क्या है कि डॉक्यूमेंट्स हैं जो बैंक को जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जैसे कि प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हो गया, और क्या एप्लीकेशन हो गया, सर्टेन केवाईसी डॉक्यूमेंट हो गए, वो और भी कई चीजें वो मतलब एक साथ प्रोवाइड नहीं होता है। उस वजह से डिले होता है। जो क्लाइंट है या बोरोवर है, जिस दिन वो एक पेपर देता है उसी दिन से वो काउंट करने चलता है कि मैंने तो दे दिया, बट जब तक वो पूरा प्रोसेस, पूरा पेपर नहीं देते, इस वजह से ज्यादा डिले होता है, और कोई रीजन नहीं है डिले होने का। सर, डिले के अलावा Nidhi, you are on mute.
सर डिले होने के अलावा कई बार कई लोगों के लोन रिजेक्ट ही हो जाते हैं, पेपर्स अगर सब होते हैं फिर भी तो उसका रीजन ये होता है सर कि जो लोन की जो रिक्वायरमेंट है वो मतलब आपकी स्कीम के अनुसार नहीं है, या क्या और रीजन हो सकता है सर? नहीं, रीजन स्कीम तो मैडम क्या होता है कि अगर स्टार्टअप इंडिया में कोई लोन एलिजिबल नहीं है तो बहुत सारी स्कीम है। सपोज अप टू 10 लाख रुपीज है तो मुद्रा लोन है, और अगर 25 लाख है तो पीएमजीपी स्कीम है, और भी बहुत सारी स्कीम है। मतलब या तो कुछ अदर कई पैरामीटर्स होते हैं कि उस वो कारण हो सकते हैं, नहीं अगर कोई अदरवाइज तो बैंक के साथ स्टैंड अप इंडिया में, पीएमजीपी में और मुद्रा में, इनमें मतलब हम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मैं एजीएम एसएमईसी एक सेल है उसमें हूँ, आधा जयपुर का मेरे पास में है। तो जहां पर होता है हम तो कई बार मेल मतलब लोन मेलाज भी लगाते हैं ये प्रपोजल सोर्स करने के लिए। अब कई बार होता है कि ज्यादातर में सिविल खराब होता है, कई ये रीजन भी होते हैं कई। अच्छा सर, दूसरी चीज ये है कि इनमें ये जो स्टैंड अप इंडिया वाली अभी आपने स्कीम बताई उसमें कोलैटरल देना पड़ता है क्या? क्योंकि लेडीज को, जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको ये बड़ा एक मन में वो रहता है कि भाई कोलैटरल हम क्या दें। नहीं, कोलैटरल नहीं है, एक सीजीएसआई है स्कीम है, उसमें कवर करते हैं इसको। अच्छा, बट कोलैटरल देने से अच्छा रहता है क्या सर? अगर है और दे तो सही रहता है, या जरूरत ही नहीं है कोलैटरल देने? दोनों ही है। अगर क्या नाम है कि आप उस स्कीम में करते हो तो कोई कोलैटरल नहीं दो तो चलेगा, कोई उसमें कोलैटरल की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ऐसे लोन्स भी पास होते हैं जिनके पास कोलैटरल नहीं होता? यस यस। अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, तो जैसे आप कुछ टिप्स बताना चाहेंगे जो हम विशेष ध्यान रखें जब हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या चीज है ताकि हमारा लोन जल्दी और सही तरह से पास हो? तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स आप बताना चाहेंगे जो हमें विशेष ध्यान में रखने चाहिए? ध्यान में मैडम यही है कि हमारे पास जब एक चेक लिस्ट होती है, तो एक तो इंटरेक्शन, अगर पहले इंटरेक्शन हो जाए जो भी है उसे एक इंटरेक्शन हो जाए, क्या है एक डिस्कशन हो जाए, और उसके बाद में जो एक चेक लिस्ट है उसके हिसाब से सब डॉक्यूमेंट अगर एक साथ प्रोवाइड कर दे, और एक मतलब बैंकर का जो कौन होता है कि भाई यस उसके हिसाब से दे दे, तो आई थिंक वो ज्यादा इशू नहीं आएगा। एक बार प्री मीटिंग होके ये है आपको ये प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं ये है, और एक बार डिस्कस हो जाए उसके ऊपर पूरा, और फिर उसके हिसाब से पेपर देख के करें, तो आई थिंक कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं आता है। थैंक यू सर। ये बहुत एनकरेजिंग है सर, ये आपने अभी जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उससे हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, मुझे लगता है उनको ये लोन लेना है एक बड़ा पहाड़ सी चीज लगती है। पर जैसे ये स्टैंड अप इंडिया के लोन्स हैं या कोई भी और आप बैंक से भी करते हैं, तो आपके रीअश्योरिंग वर्ड से उनको बहुत उत्साहित होंगे कि हम अप्लाई कर लें ऐसे लोन्स के लिए। एसएमईसीसी जयपुर है, उसमें मैं हेड हूँ, अगर कोई है तो हमारे पास भेजिएगा, हम मतलब उसमें वो पूरा वो करेंगे। और कुछ अगर कुछ मतलब मेला जैसा या कुछ ऐसा लगाने का है तो उसके लिए हम तैयार हैं। अगर कुछ ऐसा है कि कुछ कैंप जैसा लगा के कुछ करना है तो भी हम तैयार हैं उसके लिए। Thank you so much. Thank you, sir. Can I add something here, Nidhi? Yes. I have a yes, please. Yes, Preeti. Sir, I would like to appreciate your work in the bank, क्योंकि मेरा जो लोन है वो सर ने ही पास किया था। My loan is with Sir's bank and he is a very cooperative person. बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं, कोई पेपर्स वगैरह है, डॉक्यूमेंटेशन है, सब पर्सनली उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, और मतलब मुझे तो काफी कोऑपरेट किया है सर ने, और मेरा भी नॉन कोलेटरल लोन है सर के बैंक में चल रहा है। प्रीति, दैट इज सो वंडरफुल फॉर यू टू शेयर। प्रीति हमारी लाइफ मेंबर है कोविड राजस्थान की, और ये काफी टाइम से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन के लिए कर रही थी। सर खटीक सर आपका बहुत धन्यवाद है हमारे मेंबर्स को ऐसे एनकरेज करने के लिए। थैंक यू सर। मैडम जैसा जज्बा होना चाहिए मैडम में जो है कि वो था।
सर आप तो Yes, पहचानते sir. हैं मुझे, मोरनी नहीं। मैडम बोलते हैं ना। थैंक यू सर। और प्रीति, आपकी एक्सपीरियंस शेयरिंग से आई थिंक हमारे और मेंबर्स और सारे पार्टिसिपेंट्स बहुत मोटिवेट होंगे। थैंक यू प्रीति। ओवर टू यू शिवानी। मैं प्रीति से रिक्वेस्ट करता हूँ कुछ लेके आइए, हम आप जो कुछ है आप लेके आइए, आप लेके आइए कुछ बिल्कुल सर, application, हम बिल्कुल सर। हैं? And I Thank you, would also like to share that on this platform that this loan of mine is because of COVE only. The first seminar, when I was not even a member, I was a guest in some COVE meeting. There was a SIDBI and the bank people there, and there they shared all these schemes and all. And so I got in touch with SBI, and that is how my loan got passed. Thank you so much, Thank Preeti. you. Thank you. The words like these actually make our journey very worthwhile, and we feel really happy that we are in the right direction. Thank you so Yes, much, of Preeti. And आपकी इस sharing से लोगों में एक, you know, we think that whatever we are discussing is not theoretical. ये वाकई सच है और ये चीजें आगे होने वाली हैं। ये नहीं है सिर्फ हम अपना टाइम पास के लिए एक वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। We are actually working towards a practical solution. And we are going to share Mr. Khatik's details also. So people who are from Rajasthan in and around Jaipur, they can definitely contact him. And Yes, and COVE is also there for you always. Thank you so much. And participants from all over India, others also, you can feel free to ask us. Our chapters are all across India, and we will be sharing details, bankers' details with you. Thank you. Yes, Shivani. Our resource people will be available to you. We will share their access to you. Yes, Madhu ma'am, are you going to say something? Yeah. One of the query is that this loan is available for the services also. It is in the question chat. Yes, they have already explained that it is for manufacturing, trading and service sector. Let the banker also just Yes, madam. tell about it. Yes, madam. Yes, madam. This Okay. loan is available for manufacturing, service and trade sector also. जनरली Okay, लोग सोचते हैं कि सर्विस सेक्टर और प्रोफेशनल्स के लिए इतना नहीं होता, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में और बताएंगे कि लोगों ने ये कैसे फैसिलिटी यूज की हुई है, प्रोफेशनल्स ने अगर लोन लिया है तो? सर कैन यू हियर मी? हाँ मैडम। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रही थी, ज्यादातर हम ये सोचते हैं कि ये सिर्फ बिजनेस के लिए है, तो प्रोफेशनल्स जब ये लोन लेते हैं तो उसका थोड़ा सा आप बताएंगे कि किस तरह से यूज होता है, या प्रोफेशनल किस तरह के प्रोफेशंस में ये लोन अवेल किया जाता है? प्रोफेशन कोई भी प्रोफेशन हो मैडम, जैसे डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, या जो भी कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसको अवेलेबल है। Okay, thank you. रेस्टोरेंट हुआ, कुछ भी हुआ। Annie, may I ask something? Yes, please. You were saying you'll share the details. That was my question. We need Mr. Khatik's number because Yeah, we are going to share it at the end of the day. And also all the PPTs, will you be sharing those with us? Or? Yes, to all the participants. Yes. Okay, I hope you have registered and yes, yes. your email is with us. We will surely send it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Can I ask something, please? Yes, please. Yes, Shailja. Mr. Khatik, is he there? Yes. Sir, I wanted to ask you something. You were talking about collateral. So collateral is something like a bank guarantee that you give, right? And generally, bank asks for a personal guarantee, and then you have to probably show your property papers or something. Now, women entrepreneurs who are on their own and they don't have much to offer, how do they go about it? नहीं मैडम, कोई जब ये उसमें कवर है तो कोई उसकी जरूरत नहीं है। एक इसकी क्या नाम है कि उसके प्रॉपर्टी की ओनली एक नेटवर्थ स्टेटमेंट है, वो जो भी है वो उसको भर के देना होता है, बस दैट्स इट। उसका नेट मींस क्या है और कुछ उसका जरूरी नहीं है कि हमारे मैं मुझे यदि देना हो, मैं अपनी ज्वेलरी या कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज की कोलैटरल आपको देना पड़े। नहीं, वो आपके नहीं, ऐसा नहीं है। थैंक यू। एक कोलैटरल फ्री लोन है ना? हाँ Shivani ji, I would like to add something.
Yes, please. Just for the sake of participants, Kailash ji, thank you so much. I'm from Sidbi and बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतना cooperative banker हमारे सामने, and we could witness because काफी सारे हमारे पास complaints आते हैं कि मैम when we approach branches हमें बोला जाता है कि ऐसी कोई स्कीम एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है. So we counsel them कि हर एक बैंक में थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है, कहीं पे ब्रांच लेवल पे क्रेडिट होता है, कहीं पे उनके स्पेशलाइज्ड सेंटर्स है, बट डोंट वरी, आप किसी और ब्रांच को अप्रोच करिए, एंड व्हेन इफ वी गेट सम कंप्लेंट इन राइटिंग वी श्योरली टेक इट अप विद दैट रिस्पेक्टिव बैंक ऑफिशियल्स. तो आपको सुन के एंड प्रीति जी का जो लाइव एक्सपीरियंस है वो सुन के बहुत ही हमें भी अच्छा लग रहा है, बिकॉज वी आर यू नो इन द स्टैंड अप इंडिया डिपार्टमेंट एंड उसको बहुत ही तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. सो जस्ट टू एड अप की डिस्कशन हो रहा है कोलेटरल या कोलेटरल फ्री का. एज पर स्कीम गाइडलाइंस कोलेटरल इज अलाउड. तो लाइक depending upon comfort of the banker या आपका loan amount, a banker may decide to cover it under guarantee अगर possible है, या फिर अगर आपके पास collateral है या banker guarantee देने में comfortable नहीं है, which we do get cases, we do get complaints कि नाम हमें guarantee भी वो नहीं दे रहे हैं, वो collateral के लिए force कर रहे हैं. तो just for the sake of participants, इस स्कीम में collateral allowed है, ऐसा नहीं है कि allowed नहीं है, but yes, काफी सारे लोन्स हैं जो गारंटी में कवर हो रहे हैं स्टैंड अप इंडिया में. So as a banker, I would say if you have a collateral, which generally women entrepreneurs के पास इस चीज की कमी होती है क्योंकि काफी जगह प्रॉपर्टीज हमारे नाम पे भी नहीं होती है, बट आप थर्ड पार्टी प्रॉपर्टीज भी मॉर्गेज कर सकते हैं. So if you have, आपके लिए अच्छा रहता है देना, बिकॉज अगर गारंटी में कवर होता है तो देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ फी दैट यू नीड टू पे, वन टाइम फी एंड एनुअल फी. तो एक तरह से आपका इंटरेस्ट रेट कहीं पे एड ऑन हो रहा है, बढ़ रहा है. वो अगर आपके पास कोलेटरल है और आप वो देते हैं बैंकर को, तो ये खर्चा कहीं ना कहीं आप बचा लेंगे. So that is just for the clarity purpose. I hope it is clear now. कैलाश जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला? नहीं वो मैडम क्लियर है, बट मैं प्रॉपर्टी के लिए बोलता तो बोलते कि यार वो है ऐसा, इसलिए मतलब स्कीम में अलाउड है, तो अगर बैंकर मांग रहा है तो ऐसा नहीं है कि स्कीम वायलेशन हो रहा है, बट यस बैंकर भी समझता है. तो अगर आपका प्रपोजल सपोर्ट वर्दी है तो जरूर वो मतलब गारंटी में कवर करेंगे. अगर लोन अमाउंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि गारंटी में भी अलग अलग स्कीम्स है, कई बार 100% कवरेज नहीं मिलता है, 70% कवरेज मिल रहा है, या लोकेशन के हिसाब से कुछ परसेंटेज डिसाइडेड है, तो बैंकर को लगता है शायद कोलेटरल ज्यादा उनके लिए रिकवरी के माध्यम से ज्यादा अच्छा टूल होगा. So as a scheme per se, collateral is allowed, but yes, bankers do give loans covered under guarantee scheme. Thank you so much. Thank you, Mamta ji. We have a question. Would you like to ask? I like to ask, sir, NGO के लिए आपके पास किस प्रोसेस से आप लोग लोन देते हैं? If NGO some NGO applies for the loan और होता है देने के लिए, और उनके पास फंड्स भी रिटर्न करने के लिए बहुत कम होते हैं. दोबारा बोलिए सर. एनजीओ के लिए क्या प्रोसेस है लोन लेने के लिए? बिकॉज एनजीओ तो खुद ही बहुत कंस्ट्रेन में रहता है, बट कोई भी सपोज दे वांट टू अपलोड सम प्रोडक्ट व्हिच दे मैन्युफैक्चर ऑन द वेबसाइट, तो उसके लिए वो लोन लेना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोविजन है सर? मैडम एनजीओ के लिए अलग प्रोसेस है हमारा, बट अभी मैं वो मतलब लेके नहीं आया, या मतलब वो नहीं है तो आपको बता नहीं पाऊंगा, बट उसके लिए एक अलग है. आपका नंबर दे दीजिए मैडम, आपको मैं वो कर दूंगा, क्या बोलते हैं, मेल कर दूंगा. तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगी सर. आई टेक योर नंबर, आई विल कांटेक्ट यू सर. अभी आइडिया नहीं है, एक सर्टेन प्रोसेस होता है उसका. थैंक यू सर. Shivani, I have a question. This is Marceline. Yes, Marceline, please. I just would like to know the age limit for all these loans. Is there any age limit for applying for these loans, sir? Mr. Khatik.
मैडम स्कीम में तो कोई एज लिमिट जैसा तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं, बट minimum, maximum, if you tell us. I think women are never too old to start. So, and bankers are there always to help. So please carry, just take the plunge and start. Don't think about your age. You're as young as you believe. So as we proceed further, there was a question in the chat box. They were asking whether a plot can be a collateral. Yes, madam, but demarcated होना चाहिए बस. Okay, demarcated होना चाहिए आपका plot. मतलब boundary होना चाहिए. Boundary. Thank you, Mr. Khatik. और अभी मुझे लगता है questions कम थे, लेकिन आपके पास आते रहेंगे questions. Yes, and we look forward for a very cooperative attitude from you. Thank you so much. Thank you.